Good afternoon, students. Today we will study your English literature book, Beehive. And the first chapter of this book is The Fun They Had. So first of all, we will see the word meaning of this chapter. And the first word is crinkly. Crinkly. And here, the meaning of this word is with many folds or lines. With many folds or lines. Here the crinkly means with many folds or line, मतलब कई सारे फोल्ड लगे हुए हों, कई सारी तहें हों या फिर कई सारी लाइंस दिख रही हों, ठीक है? So the next word is cornful. And the meaning of cornful is contemptuous, showing you think something is worthless. है ना? Showing you think something is worthless. कुछ ऐसा दिखाना, कुछ ऐसा जताना कि ऐसा कुछ सोच रहे हो कि आप जो सोच रहे हैं वो एकदम वर्थलेस, एकदम बेकार है. शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, ऐसा कुछ जताना या बताना कि कोई चीज जो है वो बिना काम की है, बेकार है, किसी काम की नहीं. द नेक्स्ट वर्ड इज प्लॉट. And here the meaning of plot is a given space, time, or position. A given space, time, or position. किसी को एक टाइम देना या कोई स्लॉट देना, कुछ एक पर्टिकुलर एक टाइम लिमिट देना या पोजीशन देना. The next word we have is geared. So tell me the meaning of geared. Here the meaning of geared is adjusted to a particular standard or level. Particular standard और level. किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, किसी एक निश्चित स्टैंडर्ड के ऊपर एडजस्ट करना, है ना? The next word is loftily. First of all, we will revise these meanings. The first meaning is crinkly. Crinkly का मतलब क्या है? With many folds or lines, जिसमें कई सारे folds हो या कई सारी lines दिख रही हो. The second word is cornful, and the meaning of cornful is showing you think something is wrong या worthless. आपको ऐसा दिखावा करना, ऐसा दिखाना
कि कोई ऐसी चीज है जो कि वर्थलेस है, जिसका कोई मतलब नहीं है। Excuse me, just a minute. So the third word is slot, and here the meaning of slot is a given space, time or position. मतलब किसी को कुछ टाइम दिया गया हो, कोई समय दिया गया हो, है ना, कुछ दिया गया हो, वो कोई टाइम या स्पेस या पोजीशन. Say the fourth one was geared, and the meaning of geared is adjusted to a particular standard or level. खुद को एडजस्ट करना, है ना, एडजस्ट करना यानी कि बदलना या चेंज करना, या उस हिसाब से सिचुएशन को अडेप्ट करना, किसी लेवल को या किसी स्टैंडर्ड को अडेप्ट करना. तो ये हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट मीनिंग पर. Now the next word is regular. Regular. So here the meaning of regular is normal of the usual kind. Normal of the usual kind. मतलब किसी एक प्रकार का एकदम नॉर्मल था, जैसा होना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज. The next word we have is betcha. Betcha, and the meaning of betcha is bet. शर्त लगाना, है ना, bet लगाना या शर्त. Next is dispute. Dispute, and the meaning of dispute is disagree with. Disagree with मतलब डिस्प्यूट का मतलब यहाँ पर हो गया कि किसी की बात ना मानना या डिसअग्री करना, है ना, कोई बात ना मानना. नेक्स्ट वी हैव इज nonchalantly. And the meaning of this word is not showing much interest. Not showing much interest or enthusiasm, है ना, और enthusiasm या फिर carelessly. तो nonchalantly का मीनिंग क्या है? Not showing much interest और enthusiasm और careless. मतलब कि nonchalantly मीन्स कि ज्यादा इंटरेस्ट ना दिखाना, ज्यादा किसी चीज को लेकर एक्साइटेड ना रहना, या फिर एकदम केयरलेस रहना. So that is it for this chapter. इतनी ही मीनिंग थी. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. The meaning of regular is normal और the usual kind, मतलब एक ही तरह का, एकदम नॉर्मल सा कोई चीज. Betcha means bet, शर्त लगाना. The meaning of dispute is disagree with, मतलब किसी की बात से सहमत ना हो. And the last one is
nonchalantly, and the meaning of this word is not showing much interest or enthusiasm or carelessly. बिल्कुल भी ध्यान ना देना, बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाना. So we have read this chapter in the last class. So now we will see the question answers of this lesson. The first question is, how old are Margie and Tommy? तो मागी और टॉमी की क्या एज थी? इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं. मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. मागी ने इस चीज के बारे में अपनी डायरी में लिखा था. क्या लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 में शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. उसने क्या लिखा अपनी डायरी में कि टुडे, आज के दिन, टॉमी ने एक रियल बुक पाई है. उसको एक रियल बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. और ये बुक जो है वो बहुत ओल्ड है, बहुत पुरानी है. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मागी के ग्रैंडफादर ने उसको क्या बताया था कि उनके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि जब वो छोटे थे तो एक ऐसा भी टाइम था जब स्टोरीज जो थी वो पेपर पर लिखी जाती थी. तो स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि मागी अपनी डायरी में कुछ लिख रही है. क्या लिख रही है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज के दिन टॉमी को एक नई सी, एकदम नई रियल किताब मिली. सॉरी, नई नहीं, पुरानी लेकिन रियल किताब, असली की एक किताब मिली है. इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी है. और मागीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मागी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसको बताया था कि उनके ग्रैंडफादर के समय में ऐसी बुक्स हुआ करती थी जिन पर स्टोरीज जो थी वो प्रिंट कराई जाती थी. मतलब उसको छपवाया जाता था पेपर पर. They turned the pages which were yellow and crinkly. And I told you the meaning of crinkly is with folds या lines. उसमें कुछ मुड़े हुए चीजें या फोल्ड हैं, लाइंस बन गई हैं काफी पुरानी होने की वजह से. तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को पलट कर देखा और वो पेजेस कैसे थे? येलो थे, पुराने से थे. और इतने पुराने होने की वजह से उन पर जो फोल्ड्स आ गए थे वो भी दिख रहे थे. एंड इट वाज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. तो अब उनके समय में, मागी और टॉमी के समय में जो बुक्स थी वो एक सिस्टम पर दिखाई देती थी. उनके जो टीचर्स थे वो रोबोटिक टीचर्स थे, मैकेनिकल टीचर थे. तो उन दोनों के लिए, टॉमी और मागी के लिए, तो बुक कैसी होती थी? स्क्रीन पर दिखती थी और उनके जो वर्ड्स होते थे वो चलते रहते थे और वो स्लाइड्स को चेंज करते थे. तो हर स्लाइड पे एक नया वर्ड आता था, वर्ड भी चेंज हो जाते थे. लेकिन मागी और टॉमी ने जब रियल बुक देखी तो वो बड़े ही एकदम सोच में आ गए, अमेज हो गए कि ये किस तरीके की बुक है और ये किस तरीके के इस पे पेजेस बने हुए. So they turned the pages which were yellow and crinky, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on screen, you know. तो वो जैसा स्क्रीन पर उनके जो वर्ड्स होते थे वो चलते रहते थे, उनको आदत थी वो चलते हुए वर्ड्स देखने की, स्क्रीन को मूव करने की. तो उनके लिए बड़ा फनी सा था ये इंसिडेंट कि उनको एक रियल बुक दी गई है और उसमें जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज स्टिल वैसे ही पड़े हुए हैं on a screen. And then when they turned back to the pages before, it had the same word on it that it had when they read the first time. और सबसे ज्यादा उनको अजीब क्या बात लग रही थी कि जो बुक थी उसके पेजेस को जब ये पलट दे रहे थे और वापस से जब फर्स्ट वाले पेज पर जा रहे थे तो वो जो वर्ड्स थे वो सेम थे, जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़े थे वैसे ही वो जो वर्ड्स थे वो स्टिल वैसे ही बने हुए थे. तो उनके लिए ये चीज बहुत एक अजीब थी. फिर
Gee, said Tommy, what a waste. अब टॉमी ने अजीब सा मुंह बनाया और बोला कि what a waste, कितना बेकार है ये. When you are through with the book, you just throw it away. उसने बोला कि जब तुम ये बुक पूरी देख लेना अच्छे से, तो इसको फेंक देना. ये किसी काम की नहीं है. इसके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल एक जगह पर टिके हुए हैं, हमारी बुक के जैसा है ही नहीं, और सब कुछ वैसा का वैसा इसमें रहता है, कुछ चेंज नहीं होता है, वर्ड्स स्टिल रहते हैं उसी पे. तो बिल्कुल बेकार है ये, हमारे काम की नहीं. तो उसने कहा कि इसको तुम एक बार देख लेना, तो फेंक देना. I guess our television screen must have a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि हमारी जो टेलीविजन बुक है, जो स्क्रीन पर हमें बुक दिखाई देती है, उसमें इस तरह की मिलियंस ऑफ बुक मिल जाएंगी, लाखों बुक मिल जाएंगी, और ये बुक हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग है, ये हमारी बुक से डिफरेंट है. So stay with mine, said Maggie. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. जो मागी है वो कितने, उसकी क्या एज है? मागी इज 11 एंड टॉमी इज 13. तो मागी के लिए ये थोड़ा मतलब उतना भी ज्यादा उसने बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी. टॉमी 16 इयर्स का था, तो उसने अपनी लाइफ में काफी सारी जो बुक्स थी वो देख रखी थी, लेकिन मागी जो थी वो 11 इयर्स ओल्ड थी, तो उसने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी थी. सॉरी, टॉमी 13 का था, 13 साल का, और मैगी जो थी मागी वो 11 साल की थी. तो शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने बोला कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो जो टॉमी था, जब उससे मार्गी ने पूछा कि तो हम लोग इतनी अलग अलग सी बुक्स पढ़ते हैं और तुम्हारे पास ये जो अजीब सी पुरानी सी बुक है, ये तुम्हें मिली कहाँ से? तो टॉमी ने बिना उसकी तरफ देखे बोला कि मेरे घर से. और वो उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि उस टाइम टॉमी जो था वो रीड कर रहा था, वो बुक को रीड कर रहा था, देखे जा रहा था. फिर and here attic means a space just below the roof used as a storeroom. और टॉमी ने क्या बोला था कि मुझे अपने घर में एटिक में से ये बुक मिली है. और एटिक क्या होता है बच्चों? जो रूफ के जस्ट नीचे थोड़ा सा स्पेस होता है, जिसको स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है. फिर हाँ, so she said, where did you find it? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने कहा कि attic में से मुझे मिली थी, स्टोर रूम में से मिली थी. What it about? तो उसने पूछा कि ये किस बारे में है. मार्गी ने पूछा कि ये बुक है किस चीज के लिए, किस सब्जेक्ट की है. तो जवाब क्या आया? स्कूल. ये बुक है स्कूल के बारे में. मागी वॉज कॉर्नफुल. कॉर्नफुल का मतलब क्या होता है कि एकदम वेस्ट. उसको लग रहा है कि स्कूल जैसा भी क्या सब्जेक्ट हो सकता है, स्कूल जैसा क्या टॉपिक हो सकता है जो कि एक बुक में दिया गया हो. तो मागी वॉज कॉर्नफुल. स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. तो मागी ने क्या कहा कि स्कूल के बारे में बुक में कैसे हो सकता है टॉपिक, ऐसा क्या होता है स्कूल में जो उसको बुक में लिखा जाए. आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है. तो जो मागी और टॉमी है, जो मागी है वो 11 इयर्स की है, टॉमी 13 इयर्स का है. दोनों को एक बुक मिली है, और वो बुक कैसी है? बहुत ही पुरानी बुक है. वो बुक इतनी पुरानी है कि मागी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था कि उसके ग्रैंडफादर के टाइम में वो बुक चलती थी. तो उनके टाइम की जो बुक इनको मिली है वो इन दोनों को बहुत अजीब लग रही है और बहुत फनी लग रही है. एंड व्हाट इज द रीजन अबाउट इट? इसका रीजन ये है कि टॉमी और मागी ने कभी भी बुक को देखा नहीं, मतलब रियल जो प्रिंटेड बुक होती है उसको कभी देखा नहीं है. उनकी जो बुक्स होती हैं वो ई बुक्स होती हैं, इंटरनेट बुक्स होती हैं.
जो कि सिस्टम में दिखती हैं या कंप्यूटर में इनबिल्ट होती हैं। और उनके जो बुक के वर्ड्स होते हैं वो भी चलते रहते हैं, यानी कि बुक के पेजेस नहीं होते हैं, स्लाइड्स होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, और बुक जो होती है वो प्रिंटेड वाली नहीं होती है। तो कोई भी वर्ड जो है वो स्टिल नहीं होता है, और वो जो वर्ड है वो एज इट इज जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही उस पे पड़ा रहता है। फिर she said, "Where did you find it?" "In my house." He pointed without listening because he was busy reading it. तो वो जो टॉमी था वो बताता है कि उसको बुक कहाँ से मिली है। उसने बताया उसको बुक एटिक में से मिली है। और फिर मागी ने पूछा कि किस चीज के बारे में है ये बुक। तो टॉमी ने बताया कि स्कूल के बारे में। तो मागी को लग रहा है कि व्हाट अ वेस्ट, ये स्कूल भी कोई टॉपिक होता है जिसके बारे में बुक लिखी गई है, ये तो बिल्कुल वेस्ट है। आई हेट स्कूल। मागी को स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मागी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी। क्यों नफरत थी? But how she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector. तो मागी के लिए जो बुक थी, जो स्कूल था, वो इतना उसको स्कूल से नफरत क्यों थी? क्योंकि